Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start the chapter. We already know what insects are, what worms are, what reptiles are. We will know about different creepy crawly creatures and where these creatures live and harmful and useful creature keeping the pest away. So creatures that creep or crawl along the ground are called creepers and crawlers और creepy crawly creatures. तो जो creep करते हैं, ठीक है, ऐसे चलते हैं ज़मीन पे, क्रॉल करते हैं, उनको हम बोलते हैं creepy crawly creatures. Insect, worms, reptiles and spider are creepy crawly creatures. ठीक है, तो इसमें आते हैं insects आते हैं, worms आते हैं, reptiles आते हैं, spiders are creepy crawly creatures. Insects are found everywhere on land, in water and in air. Insects सब जगह हैं, पानी में है, लैंड पे है, हवा में है, ठीक है. Their body is divided into three parts: heads, thorax and abdomen. ठीक है, तो इनकी body have three parts. Their body have three parts. First is head, thorax and abdomen. You can see the picture also here. Then they have also a pair of antenna, three pairs of joints leg and compound eyes. उनके compound eyes होती हैं, ठीक है. They have three pairs of joint leg and also they have antennas. Then इंसेक्ट्स डोंट हैव बोन्स, इंस्टेड दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग. ठीक है, इनके बोन्स नहीं होते बट जो इनकी आउटर कवरिंग होती है ये काफ़ी हार्ड होती है इंसेक्ट्स की. Some insects like butterfly, housefly, mosquitoes, honeybee, cockroach and dragonfly have wings and can fly. तो जो कुछ insects ऐसे भी होते हैं जैसे like butterfly, housefly, mosquito, honeybee, इनके wings होते हैं and they can fly also. Some insects like grasshopper, cricket and locust, leaf insects etc. do not have wings, so they hop or jump on the ground. ठीक है, तो कुछ insects ऐसे भी होते हैं जो hopping करते हैं like grasshopper, cricket, locust, leaf insect. Then explore more. Insects feel with the help of their antenna and breathe through their tiny pores called spiracles on their body. So insects अपने antennas, उनके antennas होते हैं ना, like मच्छर के भी आपने देखे होंगे आगे दो antenna होते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे insects में इस तरह के antenna होते हैं and they will breathe from their, they will feel from their antennas and they breathe from their the tiny pores on present on their body called spiracles. Then we have worms. Worms are also very small creatures that do not have bones. वो worms आपने देखेंगे, अर्थ worms सुना होगा ना, तो उनकी bones नहीं होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे small creatures होते हैं, farmer friend होते हैं, मिट्टी में रहते हैं. अर्थ worm, caterpillar, silkworm, slug and snail are some common forms. Then we have their body is like a long tube which is divided into many parts called segments. उनकी body जो worms होते हैं उनकी body बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में बटी होती है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब की तरह होती है और उसमें कई सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. ईच सेगमेंट है पेयर ऑफ लेग, हर सेगमेंट का एक पेयर ऑफ लेग होता है. दे हैव पेयर ऑफ सिंपल आइज, उनकी सिंपल आइज होती हैं. एंड दे क्रॉल और वॉक विद स्विम एंड देयर लेग्स और बॉडी. ठीक है, तो वो या तो अपनी बॉडी के साथ क्रॉल करते हैं, स्विम करते हैं. दे हैव अ स्लिमी एंड स्लिपरी बॉडी, उनकी बॉडी स्लिमी होती है और स्लिपरी होती है. देन वी हैव रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स आर क्रीचर्स विद 4 लेग्स और लिम्स हैव 4 बैक बोन्स. तो रेप्टाइल्स वो क्रीचर्स होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, लेग्स या लिम्स जिन्हें बोलते हैं, एंड हैव बैक बोन्स, बैक बोन भी होती है उनके. गार्डन लिजर्ड, चैमेलियन, लिजर्ड, इगुआना, स्नेक, टॉर्टोइस, टर्टल, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर सम कॉमन रेप्टाइल्स. ठीक है, तो गार्डन लिजर्ड, चैमेलियन, लिजर्ड, इगुआना ये सब क्या होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं जो क्रॉलिंग करते हैं बेसिकली. ठीक है, देन दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. उनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है. यूजुअली सबका गर्म खून होता है लेकिन इनका कोल्ड ब्लड होता है. एंड दे हैव ड्राई स्किन कवर्ड इधर विद स्केल्स और हॉर्नी प्लेट्स. उनकी बॉडी ड्राई स्किन होती है और उसमें हॉर्नी होते हैं यानी कांटेदार से होती हैं. ठीक है, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं. दे मूव, क्रॉल और स्विम देयर लिम्स. ठीक है, अपने लिम्स से वो मूव करते हैं, स्विम करते हैं, क्रॉल करते हैं. स्नेक्स आर लेगलेस रेप्टाइल्स. स्नेक के लेग नहीं होते हैं. विच क्रॉल विद द हेल्प ऑफ देयर ऑफ मसल्स एंड स्केल दे हैव ऑन अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, तो उनकी बॉडी के अंदर जो स्केल्स मसल्स होते हैं उनसे वो क्रॉलिंग करते हैं. एज यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ गार्डन लिजर्ड, चैमेलियन, लिजर्ड, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. देन वी हैव एक्सप्लोर मोर. मिलीपिडीज एंड सेंटीपिडीज हैव मोर देन 100 लेग्स. ठीक है, मिलीपिडीज और सेंटीपिडीज के 100 से ज़्यादा पैर होते हैं. दे फीड ऑन डेड प्लांट एंड इंसेक्ट. ये डेड प्लांट और इंसेक्ट पे फीड करते हैं. देन वी हैव स्पाइडर्स. स्पाइडर आर नाइदर इंसेक्ट, वॉर्म नॉर रेप्टाइल्स. ठीक है, तो स्पाइडर ना इंसेक्ट है, ना वॉर्म है, ना रेप्टाइल्स है. दे हैव 8 लेग्स. उनके 8 पैर होते हैं. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. उनकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. दे क्रीप विद ऑल ऑफ देयर लेग्स. अपने लेग से वो क्रीप करते हैं. दे गिव आउट अ लिक्विड दैट फॉर्म अ स्टिकी थ्रेड टू मेक वेब. ठीक है, तो वो एक लिक्विड फॉर्म करते हैं जो अपना थ्रेड, जो थ्रेड टाइप होता है
जिससे वो अपना वेब बनाते हैं। दे यूज़ देयर वेब टू कैच इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, ठीक है, और इस वेब का वो इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट को कैच करने में फॉर देयर फूड। देन वी हैव वेयर दीज क्रीचर्स लिव, सो ये कहाँ रहते हैं, इंसेक्ट्स, स्वॉर्म, रेप्टाइल्स एंड स्पाइडर आर फाउंड एवरीवेयर, ये सब जगह पाए जाते हैं। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द हाउसेज, गार्डन्स, ऑन प्लांट्स, इन सॉइल एंड वाटर बॉडीज, तो ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, हाउसेज, गार्डन्स, प्लांट्स, सॉइल, वाटर बॉडीज में। देन दे हाइड देमसेल्फ इन क्रैक्स, नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ देयर लिविंग प्लेसेस, ठीक है, तो ये अपने आप को छुपाते हैं क्रैक्स में, जैसे दीवारों के बीच में क्रैक्स हो जाते हैं ना, इससे दरारें आ जाती हैं, उनमें नूक्स में, कॉर्नर्स में अपने आप को छिपाते हैं। देन वी हैव एक्सप्लोर मोर, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड एरिकनोफोबिया, ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर से जिनको डर लगता है उसको बोलते हैं एरिकनोफोबिया। Then let's do it. Picture of some creatures are given below. Then write W for worm or R for reptiles. So you have to write W for the worm creatures in the box, and you have to write R for the reptiles creature in the box. Then harmful creatures. Although many of them are small in size, they can prove to be very harmful to us. Creatures can cause harm to us are called pest. जो harmful creatures होते हैं उन्हें हम पेस्ट बोलते हैं। स्टिंग ऑफ बीज एंड वेस्पर्स इज पेनफुल एंड कॉजेज इचिंग एंड रेडनेस, ठीक है, तो यानी मक्खी, मधुमक्खी के स्टिंग्स होते हैं ना, जो इसे डंक बोलते हैं, जिससे मार देते तो कितना पेन करता है ना, तो वे वेस्प इज पेनफुल एंड इज कॉजेज इचिंग एंड रेडनेस, इससे इचिंग होती है एंड रेडनेस होती है। बाइट्स ऑफ स्नेक्स आर लाइफ थ्रेटनिंग, स्नेक के काटने से हमारी जान भी जा सकती है। हाउस फ्लाइज ट्रांसफर जर्म्स थ्रू देयर फीट इनटू आवर फूड, हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, बाहर से जर्म्स लेके आते हैं और हमारे खाने पे बैठते हैं, तो वो जर्म्स कैरियर होती हैं। दे कैन कॉज डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया। लिजर्ड इफ फॉल एक्सीडेंटली इन फूड मेक द फूड पॉइजनस, अगर गलती से भी खाने में छिपकली गिर जाए तो खाना पॉइजनस हो जाता है। बाइट्स ऑफ बग्स, फ्लीज एंड लीस ऑल्सो कॉज इरिटेशन, बग्स, लीज, फ्लीज के काटने से भी इरिटेशन होती है। देन स्टिंगिंग ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया इन ह्यूमंस, ठीक है, और मच्छर के काटने से हमें डेंगू, मलेरिया जैसी, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यूजफुल क्रीचर्स, सम ऑफ देम आर आवर फ्रेंड एंड वेरी यूजफुल टू अस, कुछ इंसेक्ट्स हमारे फ्रेंड भी होते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। बटरफ्लाइज हेल्प इन ट्रांसफरिंग पॉलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, तो बटरफ्लाई क्या थे, पॉलन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन, एक फ्लावर के पॉलन एक्सीडेंटली वो दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर देती हैं। दे आर ऑल्सो अ प्रेजेंट साइट टू आइज, ठीक है, और उनकी वो देखने में भी काफ़ी प्यारी लगती हैं। देन हनी बी प्रिपेयर हनी फ्रॉम द नेक्टर एंड दैट दे कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, तो हनी बी क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करके उसका शहद बनाते हैं, तो वो भी हमारी फ्रेंड है, ठीक है, हम वेरियस ऑफ पर्पस के लिए उस हनी का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ वॉर्म्स आर फार्मर फ्रेंड्स, अर्थ वॉर्म को फार्मर फ्रेंड बोला जाता है। दे हेल्प इन टर्निंग द सॉइल इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये तो सॉइल को लूजन बनाने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो दे help the plants of growth. Then we get silk fiber from cocoon of silkworm, silk हमें मिलता है cocoon of silkworm से and it is used to make silk fabric, जिससे silk के fabric बनाए जाते हैं। Then keeping the pest away, keep the house clean, keep food item cover, use disinfect to mop the floors and put wire mesh on doors and windows and don't let water to be collected in old tires, pots and bins, spray pesticides in drains and sewer regularly, तो हमें अपने घर को साफ करना चाहिए, हमें फूड आइटम्स को कवर करके रखना चाहिए, हमें पोछा अच्छे मतलब जो मोपिंग है वो डिसइंफेक्टेंट्स करनी चाहिए। देन हम अपने वायर मेश और डोर्स को मतलब वायर मेश वाले डोर हमें लगवाने चाहिए जिससे कि बाहर से हाउस फ्लाई मॉस्किटोज ना आए, ठीक है। डोंट लेट द वाटर बी कलेक्टेड इन ओल्ड टायर्स, पानी को कलेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे ओल्ड टायर हो चाहे ड्रेन्स हो, कहीं पे भी बीन्स में भी हमें पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। एंड पेस्टिसाइड्स को हमें ऑलवेज स्प्रे करना चाहिए इन द ड्रेन्स एंड द सीवर्स regularly. Then we have, let's recall, insects, swarm, reptiles and spiders are creepy crawly creatures. The body of an insect is divided into three parts: head, thorax and abdomen. Insects don't have bones, instead they have a hard outer covering. The body of worms is like a long tube which is divided into many segments. Reptiles are cold-blooded animals and spiders have 8 legs. Fleas, bugs and mosquitoes are harmful to us. Honeybees, silkworm and earthworm are useful insects. We must keep our surrounding clean to keep out harmful insects. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.